دعا بہت ہی سمپل ہے، بہت آسان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی زیادہ اس کی بہترین تاثیر ہے کہ ہم لوگ جب جانیں گے کہ یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اتنی پیاری سی اور اتنی سب کچھ اس میں ہم مانگ لے رہے ہیں، ہدایت، ثابت قدمی، بہترین طریقے سے اللہ سے، کہ یہ دعا ہمیں لگتی ہے کہ کافی ہے۔ اور ساتھ میں یہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھا راہ چلا۔ تو ہم کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ایک دم سیدھا۔ تو یہ اس کی تفسیر بھی ہے کہ ہم اللہ سے کیسا راہ مانگ رہے ہیں، ہمیں سیدھا راہ دکھا، ہمیں ہدایت والی، تقوی والی، پاک دامنی والی، ساتھ میں ایک دم ثابت قدم رکھ اس چیز میں۔ اس چیز کو ہم تفسیر سے جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے یہ دعا ہے کیا؟ ایک منٹ، میں نے یہ دعا سینڈ نہیں کیا، یہاں پہ دیکھیے یہ ہے دعا، جس کی حدیث بھی ہم جانیں گے اور جس کے تدبر میں بھی ہم جائیں گے، غور و فکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے، اللہم اہدنی وسددنی، یہ کتنی چھوٹی سی دعا ہے نا، اسے یاد کرنے میں بالکل بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی ترجمہ بھی بہت آسان ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، یعنی کہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راہ عطا فرما، اور مجھے درستی یعنی صحیح راستے پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ، صحیح راستہ دکھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ جیسے کہ ہم مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ تو یہاں پہ سیدھا راہ بھی دکھا، ساتھ میں اس میں قائم رہنے والا بھی بنا، اس پہ قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ نہیں کہ ہم بیچ میں بھٹک جائے، بلکہ اس پہ ثابت قدم رہے، اس پہ پوری طریقے سے قائم رہے، ایسا راہ دکھا اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے۔ اس کی تجوید دیکھیں گے تو بہت سمپل سی ہے، اللہ کے نام کو یہاں پہ پور پڑھنا ہے، اللہم، اللہم، یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ میم میں غنہ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے گا میم کے اوپر تشدید ہے، اوکے؟ اللہم، میم کو ہاں میں ملا دینی ہے، اوکے؟ اللہم اہدنی، نون یا زیر نی کو کھینچیں گے، دال کو دی، نیچے کو آواز جائے گی دی کی، اوکے؟ اللہم اہدنی وسدد، وسد، سین کو دال میں ملائیں گے، وسد، پھر دال کو دال میں ملائیں گے، اوکے؟ وسددنی، نون یا زیر نی، یہاں پہ بھی کھینچیں گے، یہاں پہ بھی یا مد آئی ہے، یہاں پہ بھی یا مد آئی ہے، دونوں میں سیم سیم، صرف اور صرف 2 کاؤنٹس کی ہے۔ وسددنی، وسددنی، پھر سے پڑھیں گے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، وسددنی، اوکے؟ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت یعنی کہ سیدھا راستہ عطا فرما، اور مجھے درستی یعنی کہ صحیح راستے پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ یہ سارے اس کی ترجمہ ہے، اوکے؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہو گئی ہو، اوکے؟ ابھی بھی اگر یاد نہیں ہو پائی ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ اسے 2-3 بار پڑھیں گے، نماز میں بھی پڑھیں گے تو یہ یاد ہو جائے گی۔ کافی سمپل سی دعا ہے، اوکے؟ آگے بڑھتے ہیں، یہ کتنی گہری ہے۔ جی اب آتے ہیں ہم حدیث پر، اوکے؟ حدیث کون سی حدیث میں یہ مینشن ہے؟ تو یہ اولڈ ہے یا نیو ایڈیشن ہے یہ مجھے نہیں معلوم، بٹ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2725 میں ہے، 2725 کی اے میں ہے۔ اور میں نے یہ حدیث کی ریفرنس چیک کی تھی تو الگ الگ جگہ پر الگ الگ بتا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس حدیث میں اور بھی حدیث بتا رہی ہے، تو اس کا ایڈیشن سے کچھ لینا دینا ہوگا، تو اتنے ڈیپ میں ہم نہیں جائیں گے، بس دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث بہت اوتھینٹک ہے، یہ ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے نیریٹر کون ہے؟ اس کے نیریٹر ہے علی ابن ابی طالب،
रदी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, इनके नैरेटर है। तो ये हदीस ऐसी है, इसके रावी, रावी यानी कि होती है नैरेटर। नैरेटर कौन है? मैंने अभी बताया था, ये स्क्रीन पे भी लिखी हुई है, अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो नबी ने ये दुआ के साथ एक मिसाल भी दी थी। सबसे पहले नबी ने फरमाया कि इन्होंने क्या फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी। क्या हुआ कि हजरत अली इब्न हजरत अली बिन अबी तालिब रहमतुल्लाहि रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि कहो, अल्लाहुम्मा हदिनी वसद्दिदनी, यानी कि हम क्या मांग रहे हैं यहाँ पे, अल्लाह से सही सही रास्ता मांग रहे हैं और साथ ही साथ साबित कदमी भी मांग रहे हैं यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के जरिए, ठीक है। और ये दुआ में तसव्वुर, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ के साथ एक मिसाल भी दी। क्या मिसाल दी? जब तुम हिदायत मांगो तो अपने जहन में उस सीधे रास्ते का ख्याल लाओ जिस पर चलकर मंजिल मिलती है। जब भी हम अल्लाह से हिदायत मांगेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जुबान से हम कह नहीं देंगे कि या अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमा। सिर्फ हम जुबान से हमेशा कहते हैं नमाज में कि या अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमा, मतलब कि हम सीधा रास्ता मांग रहे होते हैं, ठीक है, हमेशा सीधा रास्ता मांग रहे होते हैं। फोर्थ आयत है ना वो, मालिक यौमिद्दीन, नहीं, फिफ्थ आयत में हम मांग रहे होते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरात। उसके बाद आती है ना कि हम हमेशा अल्लाह ताला से सीधा रास्ता मांग रहे होते हैं, 5 वक्त के नमाज में, एक्स्ट्रा नमाजें भी पढ़ते हैं, नफिल नमाज में भी, हर चीज़ में सूरह फातिहा कंपलसरी होती है, तो हम सब में मांग रहे होते हैं। लेकिन हमारे जहन में आती है कि हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, हम सीधा रास्ता का ख्याल लाते हैं अपने तसव्वुर में। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, साथ में फरमाया कि जब भी तुम हिदायत यानी कि अल्लाह से गाइडेंस मांगो या फिर अल्लाह से सीधा राह मांगो, सीधा रास्ता मांगो, तो अपने जहन में उस सीधे रास्ते का ख्याल लाओ जिस पर चलकर मंजिल मिलती है। मंजिल से मुराद यहाँ पे ये हो जाएगा कि हमें जन्नत मिलती है या हमें जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है, ठीक है। जब तुम सदद मांगो तो उस तीर या फिर एरो की सीधे रास्ते का ख्याल करो। जब इंसान एरो चलाता है तो वो क्या करता है, एकदम अपने निशाने पर फोकस करता है, ओके। अगर उसका निशाना इधर उधर हुआ तो एरो भी टेढ़ा होकर क्या हो जाएगा, निशाना चूकेगा नहीं, बल निशाना रह जाएगा। अब वो निशाना एकदम सीधे अपने एम पर नहीं लगेगा जहां पे लगना था, बल्कि अगर फोकस इधर उधर हुआ तो क्या होता है कि निशाना थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है। एक स्टोरी में भी आया है कि दो स्टूडेंट थे, एक टीचर के दो स्टूडेंट थे, दोनों को तीरंदाजी सिखाते थे। तो क्या होता है, एक हमेशा एकदम सीधे निशाने पर लगाता है, तो उससे पूछा जाता है कि क्यों आपका निशाना एकदम सीधे, एकदम आपके जहां पे लगाना है वहीं पे क्यों लगता है, उसके आस पास में या फिर थोड़ा सा भी आपका निशाना चूकता क्यों नहीं है, मतलब कि टलता क्यों नहीं है। तो वो बोलता है कि मेरा ध्यान वहीं पर होता है जहां पे मुझे निशाना लगाना है, उसके अलावा और कहीं नहीं होता है। मेरा ध्यान एकदम सीधे वहीं पे होता है जहां पे मुझको निशाना लगाना है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है कि सदद का मतलब है कि कोई भी काम हम जब कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रही है कि ऐसा मांगो जैसे कि हम तीर यानी कि एरो का ख्याल करते हैं। जब हम एरो लगाते हैं, लोग जो भी एरो लगाते होंगे या फिर निशाना लगाते होंगे तो वो कहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल अपने निशाने पर अपने आंखों को रखते हैं, आंखों को एकदम निशाने पर रखते हैं, तब तब जाकर वो निशाना सही से लगता है। ओके, यहाँ पे वही चीजें सिखाई जा रही है कि हमें क्या करना है, कि हमें भी इसका ख्याल रखना है कि हम हमारी जो
एम है हम उसको पूरे तरीके से अपना निशाना वहीं पे रखें, ताकि हम दीन में साबित कदम रह सके। यानी कि मांग रहे हैं, जब हम अल्लाह ताला से गाइडेंस मांग रहे हैं तो हमारे ख्याल में क्या होना चाहिए, अपना निशाना होना चाहिए कि हमें क्या सही गाइडेंस क्या है, हमारे जहन में होनी चाहिए कि आखिर वो सही गाइडेंस है क्या। ठीक है, तभी हम उस पर चल पाएंगे और अपने मंजिल को पा पाएंगे। दुआ का तर्जमा तो बता दी हूँ मैं कि ए अल्लाह मुझे हिदायत दे, यानी कि सीधा रास्ता दिखा और दीन के काम में साबित कदम रख, दुरुस्तगी अता फरमा। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जामिया दुआ, आप लोग कुछ बोले, मेरी आवाज क्लियर है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये हदीस भी हमने देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो जामी दुआ है, ये कलमात उन कलिमात में से हैं जो बिल्कुल ही मुख्तसर से हैं। कितनी वर्ड्स ही हैं इसमें, मुश्किल से 3 वर्ड्स है ना, अल्लाहुम्मा फिर इहदिनी व सद्दिदनी, अल्लाहुम्मा इहदिनी व सद्दिदनी। सिर्फ इतने से अल्फाज है, लेकिन अगर इसकी हम गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ जानने को है और बहुत कुछ अपने दिल में तस्वुर मिलाने को है और बहुत सारी चीजें इसमें मांगने को है। ओके, हिदायत और साबित कदमी मांग रहे हैं। इंसान को सिर्फ हिदायत मिलना काफी नहीं होती है, बल्कि उस पर जमे रहना, उस पर स्टेड फास्ट। मतलब कि इंसान को हिदायत मिल गया, लेकिन इंसान कभी भी तो गुमराह हो सकता है ना। हम अल्लाह से ये भी मांगते हैं ना, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमाए रखना। ये हम जब मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? क्योंकि दीन पर जमाए रखना अल्लाह का काम है। अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है उस मामले में, क्योंकि हमारा दिल कभी भी भटक जाता है, कहीं पे भी दुनिया की, कभी लज्जतों में, कभी दुनिया की चमक धमक में, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इसीलिए हमें क्या, हमेशा उस पर स्ट्रेट फास्ट रहने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि अल्लाह से हमेशा मांगते रहना चाहिए कि हमें दीन पर जमाए रख। तो ये भी दुआ उसी से रिलेटेड है। ये दुआ दोनों चीजों में बैलेंस करने के लिए, हर मुश्किल में मदद, जब भी कोई फैसला लेना हो या किसी उलझन में हो, तो ये दुआ हमें अल्लाह से मांगनी चाहिए और जहन में दुरुस्ती लानी चाहिए, यानी करेक्शन लानी चाहिए। अगर हमारी किसी चीज में करेक्शन नहीं हो पा रही है तो हम क्या करें, ये दुआ के जरिए अल्लाह से करेक्शन मांगे, सही राह याबी मांगे, दुरुस्ती के सामान मांगे कि अल्लाह ताला दुरुस्ती अता फरमा। इसी हदीस की एक और रिवायत में एक और दुआ आती है ना, इसी हदीस की एक और रिवायत में ये अल्फाज आती हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वस्सदद। एक और दुआ यहाँ पे आ गई है। ओके, ये दुआ को आप लोग चाहे तो याद कर भी सकते हैं, नहीं भी, मेन दुआ ये है अल्लाहुम्मा हदिनी वसद्दिदनी। ये दुआ मेन है ओके आज की। लेकिन ये दुआ भी मैं बता देती हूँ जो इसकी तफसीर में आई है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत और दुरुस्तगी का सवाल करती हूँ या करता हूँ। ये थी। चले अब हम गौर फिक्र करते हैं। अगर आप लोगों को ये हदीस की एकदम ऑथेंटिक नंबर मालूम हो, मैंने तो बता दिया है, वैसे 2725 है। सुन्नत डॉट कॉम में यही मेंशन थी, बट अगर आप लोगों को कहीं से कुछ और भी मिलता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ओके, चलिए हम वर्ड बाय वर्ड इसके तर्जमे को देखेंगे, फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे। बहुत मुख्तसर से दुआ है, इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाने वाली है। साथ में हम बहुत कुछ सीखेंगे। अल्लाह ताला हिदायत दे इंशाल्लाह और हमें इस पर अमल करने वाला बनाए। देखिए, वर्ड बाय वर्ड तर्जमा में आती है लफ्ज अल्लाहुम्मा। सबसे पहले आ रही है ना अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा यानी कि या अल्लाह, अल्लाह को हम पुकार रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे बीच का हमारा और कोई वसीला वसीला नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहे हैं। इहदिनी, अल्लाहुम्मा इहदिनी आ जाएगा, मुझे हिदायत दे। यहाँ पे हिदायत मांग रहे हैं हम अल्लाह से। हिदायत मतलब होता है सीधा रास्ता, नेक रास्ता
और गुनाह से बचने वाला रास्ता है ना हिदायत, तकवा। वाह, फिर वाह आएगा। वाह का मतलब होता है और। कहीं पे भी आपको कुरान में वाह लिखा हुआ मिले, वाह जबर वाह, तो आप उसका मतलब समझ जाइएगा कि अम, उसका मतलब यही होता है कि और। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखी हुई है ना वाह। यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड में नहीं ऐड की हुई है, लेकिन यहाँ पे लिखी हुई है वाह। ये वाह कहीं पे भी मिलेगी तो उसका मतलब होता है और क्या मांग रहे हैं हम यहाँ पे? हिदायत भी मांग रहे हैं, और मुझे सीधा रख। वसद्दनी यानी कि साबित कदम रख। ठीक है, ये था हमारा वर्ड बाय वर्ड तर्जमा। मुझे बिल्कुल सीधा, ठीक और बैलेंस्ड रख। ठीक है, यानी कि हम कभी भी बहक सकते हैं, कभी भी हम रास्ते से भटक सकते हैं, कभी भी हमारा सीधा रास्ता जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं उससे हम कहीं और गुनाह की तरफ भी फिर सकते हैं। तो हमें क्या करे, उस पर कायम रख, हमें उस पर साबित कदमी रख, उस पर चलने वाला बना, उस पर स्टेड फास्ट। फिर डीप तदब्बर करते हैं हम थोड़ा सा इस पे, कि सिर्फ हिदायत का मिलना ही काफी नहीं है ना, सिर्फ सीधा रास्ता मिल जाना काफी नहीं है, बल्कि उस पर जमे रहना भी कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हमारा एम है, जैसे कि उस निशाने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, तो जैसे कि हमारा एम है जन्नत, तो हमें पूरे फोकस कहाँ पे करना है, जन्नत में। और थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो हमारा फोकस बिगड़ जाएगा। ओके, तो ये बता रहा है कि हमें हिदायत मिलना काफी नहीं है, बल्कि उस पे जमे रहना, उस पे कायम रहना बहुत जरूरी है। ओके, और यही बताता है सद्दिदनी। फिर गलतियों से बचना, एक्सट्रीम ज्यादा या कम से बचकर नहीं, बैलेंस वे में, मतलब कि हमसे गलतियां होती हैं, हम माफी मांगते हैं, लेकिन फिर से अल्लाह ताला से क्या करेंगे हम, यही हम दीन पर कायम रहने वाला बना, ये मांगेंगे इंशाल्लाह। Ex- अ, फिर सीधा टारगेट क्या है हमारा, जन्नत है, अभी मैंने बता दिया। थोड़ा सी भी टेढ़ा होगा तो क्या होगा, मिस हो जाएगा, मतलब कि अगर हम इधर उधर भटकेंगे जन्नत के अलावा, हमारे जहन में और कुछ तस्वुर आएगी कि चले इसमें थोड़ी सी और ज्यादा फायदे हो जा रही है, दुनिया ही के अगर सिर्फ फायदे मांगेंगे तो हम सिर्फ भटक जाएंगे। ऐसे काम करें जिसमें हमें दुनिया का भी फायदा हो जा रहा है, साथ में हमारी जन्नत भी बन जा रही है, तो उस पे हमें पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए। यह नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया, मतलब कि कुछ भी हम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए कर रहे हैं। मेन फोकस हमें जन्नत रखना है, और उसके साथ साथ अगर हमारी दुनिया भी बन जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए जन्नत इंशाल्लाह ताला। फिर इस दुआ की फजीलत ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह से एक छोटी सी दुआ से एक बहुत बड़े असरात अपनी ज़िंदगी में मांग रहे हैं, कि हमें ज़िंदगी का शॉर्टकट, एक शॉर्टकट वाली दुआ है, लेकिन कि हम हिदायत भी मांग रहे हैं, इस्तिकामत मांग रहे हैं, दुरुस्तगी मांग रहे हैं, और साबित कदमी मांग रहे हैं, उस पर कायम रहने वाला बना दे अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। हमें अगर कुछ डिसीजन लेने में कुछ तक दिक्कत होगी, अगर हम नहीं ले पाए, तो मशवरा तो करनी ही चाहिए, लेकिन ये दुआ के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए कि हमें दुरुस्तगी अता फरमा। ओके, गलत रास्ते में अगर हमें लग रहा है कि हम गलत रास्ते में बढ़ रहे हैं, हम भटक जा रहे हैं, तो फिर हम अल्लाह ताला की तरफ पलटेंगे और अल्लाह से इस दुआ के ज़रिए मदद मांगेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और हम कभी भी इस दुआ को मांग सकते हैं सुबह उठते ही, कि हम सुबह उठते ही क्या मांग रहे हैं अल्लाह से, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा राह दिखा। अल्लाहुम्मा हदिनी वसद्ददनी, कि या अल्लाह ताला हमें क्या कर, हमें सीधा राह दिखा, मुझे हिदायत भी दे और अता फरमा, और दुरुस्तगी यानी कि कायम रहने वाली भी बना दे। तो इतनी प्यारी दुआ
हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। सुबह उठते के साथ आप कर सकते हैं, नमाज के बाद जो हम जिक्र और अस्कार करते हैं उसके बाद भी मांग सकते हैं ना। जिक्र और अस्कार के बाद दुआ मांगने से बहुत फ़ायदा है। आई होप कि आप लोग जिक्र और अस्कार जानती होंगी फ़र्ज नमाज के बाद, तो वो ज़रूर किया कीजिए, फिर उसके बाद दुआ मांगेंगे तो और जल्दी कबूल होगी। फिर उसके बाद किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन, पहले मैं टास्क दे देती हूँ, ये दुआ अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत छोटी सी दुआ है, आप लोगों को पूरा एक दिन का वक्त दिया जाता है, आप लोग इंशाल्लाह याद कर लीजिएगा पूरे एक दिन में। फिर इसके तर्जुमे के साथ याद कीजिएगा। इस छोटी सी दुआ की हदीस बयान करिएगा। ओके, क्या हदीस है, हदीस मैंने ग्रुप में भेज दी है। ओके, और मैं इसकी हिंदी हदीस ना, ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, इंशाल्लाह आप लोग देख लीजिएगा रोमन उर्दू में। ठीक है, ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसकी। बस आप लोगों को